Hello students, once again I Pramod sir welcome you all in 7th standard maths class. So students, in the lesson algebraic expressions and identities, we have taken 9 examples of exercise 60. Ninth example was based on perimeter of triangle and 10th is also the same. So students, try to solve the 10th question. Now students, you can see I have written here 11th question. Let us start this now. Sonu travelled p square plus 3p plus 5 kilometers by bus and 2p square minus 5p minus 7 kilometers by train. यानी बस के साथ कुछ किलोमीटर्स एंड ट्रेन के साथ कुछ किलोमीटर्स सोनू ने ट्रैवल प्रवास किया है, राइट? What is the total distance traveled by Sonu? Total distance. Of course, students, you got it. I think so. So we have to add these two distances, right? बस से कितना किया है और ट्रेन से कितना किया है वो उन्होंने दिया है. अगर हम ऐड कर देते हैं दोनों डिस्टेंस को, of course we will get the total distance. Okay, total travel distance. So first algebraic expression p square plus 3p plus 5 plus another expression is 2p square minus 5p minus 7 equals to. So students, equals to what will we get? Removing brackets, we have to write down the same algebraic expression. ये प्लस की वजह से कुछ फर्क गिरने वाला है नहीं सिंबल्स के ऊपर. सो एज इट इज once again plus 2p square minus 5p minus 7. Now students, like terms p square plus 2p square now plus 3p and minus 3p. Now students, the constants plus 5 minus 7. So what we get? 1p square plus 2p square means 3p square. इसका आंसर मिल जाएगा 3p minus 5p plus 3p minus 5p means minus 2p. Of course 5 minus 3 2 और ये सिंबल बड़े नंबर के सामने का, राइट? 5 minus 7 minus 2, of course. So students, the question is what is the total distance traveled by Sonu? Therefore, the total distance यानी बस से और ट्रेन से the total distance traveled by Sonu is 3p square minus 2p minus 2 kilometers km. Okay students, so it was very easy question. The next one now, the sides of a rectangle are 3x plus y and 7x plus 2y. So students, rectangle के sides दिए हैं, these are the sides, right? And the sides are 7x, first is 3x plus y. Anything we can take. 3x plus y is one side and another side is given. It is 7x plus 2y. So let us say that this side is 7x plus 2y. 7x plus 2y. तो दोनों साइड्स दिए हैं. फाइंड इट्स पेरीमीटर. So students, we discussed earlier also that triangle का अगर perimeter निकालना है तो what we did, just a plus b plus c, sum of all sides. Like rectangle also we know students, एक length होती है और एक breadth होती है. ये length और ये opposite sides के length same होते हैं तो ये l है तो ये भी l होगा, ये b है तो ये भी होगा. Then what will be the perimeter of rectangle? It's very easy students. L plus b plus L plus b, sum of all sides. तो ये L plus b plus L plus b ये perimeter आएगा. किसका perimeter आएगा? Rectangle का, हर एक rectangle का.
तो स्टूडेंट्स L प्लस L ये 2L हो जाएगा और B प्लस B 2B हो जाएगा। सो इसका फार्मूला जो है वो कैसा आता है, 2 को अगर हमने बाहर निकाल लिया तो इन ब्रैकेट L प्लस B। सो स्टूडेंट्स इट इज द फार्मूला ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, ऐसा भी हम इसका फार्मूला ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स I can write here, suppose length दिया है 3x plus y, एक साइड को हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, ये एक जो साइड है उसको हमने क्या ले लिया, L ले लिया, एंड ब्रेड 7x plus 2y. So students, what will be the perimeter? Find its perimeter, the perimeter of rectangle. I can write here now perimeter of रेक्टेंगल, इसका फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि फार्मूला कैसा डिराइव हुआ है, ये मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर। सम ऑफ ऑल साइड्स मींस पेरीमीटर, सो L प्लस B प्लस L प्लस B। ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट विल गेट, 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स ब्रेड, राइट। सो अगर इसका कॉमन अगर 2 है, उसको अगर हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया स्टूडेंट्स, सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड इज द फाइनल फार्मूला। यू कैन यूज 2L प्लस 2B also, but I am going to use 2 in bracket length plus breadth. So students, it will be very easy to solve 2 in bracket L plus B. So I am going to write the formula 2 in bracket length plus breadth is equal to के नीचे is equal to हमको लिखना होता है स्टूडेंट्स ऑलवेज। फॉर सेविंग द स्पेस आई एम राइटिंग हियर, ओके। सो 2 in bracket, let us see students what is length, 3x plus y, ब्रेड क्या है, प्लस करने के बाद में ब्रेड। तो स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट इन दिस वे, इट इज लेंथ नाउ प्लस व्हाट इज ब्रेड, 7x plus 2y. So we are going to simplify this now, and ultimately what will we get, 2 in bracket 3x plus y, सिंबल तो चेंज नहीं होंगे ये प्लस की वजह से, we know it very well, plus 7x plus 2y. So it's very easy students now. So 2 in bracket you can see students 3x plus 7x, directly I am going to solve 10x plus 1y यानी y plus 2y, 1y plus 2y means 3y. So students, in this way also you can write the answer. अगर कोई स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करता है या वो जो फार्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड ये भी यूज करता है तो उसको आंसर ये मिलेगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करें स्टूडेंट, 2 into 10x means 20x आ जाएगा, राइट, प्लस 2 into 3y 6y। ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a in bracket b plus c को हम a into b plus a into c लिख सकते हैं। सो आई यूज्ड हियर, राइट। सो स्टूडेंट्स ये भी अगर आपने आंसर लिखा या ये भी आंसर लिखा, सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट एंड वन एंड द सेम, ओके। सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल नाउ, दैट इज द 13, one and the same students, you can see here the side of square is, यहाँ पर rectangle था, यहाँ पर square, square के all sides equal होते हैं, and the side is given students, the side of square is given 8x plus 3, सभी साइड सेम होते हैं तो उसकी एक साइड 8x plus 3 दी है, it is square, of course all sides equal, मैंने दिखाया भी है with the help of identical ones. So students, find its perimeter, sum of all sides, अगर एक साइड अगर a है, here अगर मैंने उस साइड को a मान लिया 8x plus 3, so perimeter of square का फार्मूला क्या होगा, बहुत इजी है, perimeter of square, अगर साइड a है स्टूडेंट्स तो perimeter क्या हो जाएगा, a plus a plus a plus a 4a, it's very simple. So I can write equals to 4a, that means equal to के नीचे equal to, once again I am reminding you, 4 into the value of a, the side is 4 into
साइड ऐसा हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को। तो 4 इंटू, अब ए की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइड। मैंने साइड को ए लिया है। अगर डायरेक्टली भी आप लिखते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड तो भी चलेगा। ओके, सो 4 इंटू 8x प्लस 3। नाउ स्टूडेंट्स, यूजिंग द सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 4 इंटू 8x, 4 8s are 32x plus 4 3s are 12. Therefore, its perimeter is, यानी the perimeter of square, its perimeter is 32x plus 12. सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, you can write unit, just UNIT आप ऐसा भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर अगर सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर हम लिख सकते थे। So students, we will see further questions now. Now further questions students, the 14th. One side of an equilateral triangle is 3x plus 4y meters. Find its perimeter. तो students, इसके पहले का जो क्वेश्चन था इट वाज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो 4 इंटू साइड हुआ था। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल ही होते हैं। अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड, मान लो मैं ए अगर मानता हूँ, तो सभी साइड्स इक्वल यानी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस a, दैट मीन्स 3 इंटू साइड, 3 इंटू a, राइट। सो स्टूडेंट्स, हियर मैं जो a है यानी साइड है वो दी है हमको 3x प्लस 4y। अब डायरेक्टली भी छुड़ा सकते हो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, ऐसा भी कर कर छुड़ा सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर a इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। नाउ पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, मगर यहाँ पर हमने a लिए है साइड, तो 3 टाइम्स a, 3a इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना पड़ेगा। सो 3 इंटू साइड, साइड है स्टूडेंट्स 3x प्लस 4y। तो मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 का मल्टीप्लीकेशन पहले 3x के साथ में और बाद में 4y के साथ में, राइट। 3 इंटू 3x 9x प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4y, 3 4 जार 12y। ऑफ कोर्स ये जो आंसर है उसका यूनिट उन्होंने दिया है मीटर, तो वी कैन राइट एम हियर एंड देयरफॉर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसका आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 9x प्लस 12y meters. Okay. Now students, the next one, 15. A wire is 7x minus 3 meters long. Okay. A length of 3x plus 4 meters is cut out of it for use. यानी एक वायर है स्टूडेंट्स, इतना लंबा है समझ लो, इसमें से इतना यूज करने के लिए हमने कट कर दिया यहाँ से, यानी इतना हमने उस वायर को कट कर दिया, तो बचा कितना ये निकालना होगा। यस, हाउ मच वायर इज लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स, इट्स सिंपल वर्ड प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन सब्ट्रैक्शन, इट्स सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। सो जो पहले सबसे मेन जो लेंथ दी है वो कितनी है, 7x माइनस 3, इसमें से ये 3x प्लस 4 वायर कट कर दिया गया है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इजी, 7x माइनस 3 इतनी लेंथ थी वायर की, माइनस कितना कट किया है, 3x प्लस 4 मीटर वायर को कट किया है, तो इक्वल टू कितना आएगा आपको पता है, आपको इधर लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, मगर ये माइनस की वजह से ये पूरे सिंबल्स चेंज होंगे, माइनस 3x माइनस 4 हो जाएगा। सो माइनस 3x माइनस 4, ये कैसा होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। ओके, सो स्टूडेंट्स, 7x ये माइनस 3x है, ये माइनस 3 है और ये माइनस 4 है।
So 7x minus 3x, it will be of course 4x, और minus 3 minus 4 minus 7. तो ये भी मीटर्स में दिया है, unit is mentioned there, so we should write the unit also. How much wire is left there? 4. 4x minus 7 meter wire is left. Wire is left. So once again, it was very easy question, students. So let us see the next one. Sixteenth question now, students. रोहन had रुपीस दिए हैं with him, उसके पास कुछ रुपीस थे. ओके, मान लो इतने रुपीस उसके पास में थे. He spent रुपीस और दिए हैं ये पहले रुपीस, ठीक है. बाद में इसने इतने खर्चा किए. He spent for his birthday पार्टी पर खर्चा किए. ओके, कुछ रुपीस उसमें से उसने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, स्पेंड कर दिए, खर्चा कर दिए. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम? सो स्टूडेंट्स, कितना उसके पास पैसा बचा है लेफ्ट विथ हिम? तो वी नो स्टूडेंट्स, अगर 100 रुपए थे, 30 रुपए खर्चा कर दिए तो 70 बचे. यानी सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है. इट्स वेरी इजी. तो पहले जो था अपने पास में उससे माइनस करो जो हमने स्पेंड किया है. We will get the left rupees with us, right? Very easy. So सबसे पहले कितने रुपए थे उसके पास में? 17x square plus 4x minus 3. ओके, और कितना खर्चा किया? 8x square minus 7x minus 9 rupees. ओके, तो ये थे, इतने खर्चा कर दिए. इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, we will get the left rupees, right? So equals to, आपको पता है, I am going to write from here. So पहले ब्रैकेट को as it is लिखना पड़ेगा. 17x square plus 4x minus 3, और ये माइनस की वजह से सभी साइंस चेंज होंगे. स्टूडेंट्स बी केयरफुल हियर. माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 8x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा प्लस 7x, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा प्लस 9 आएगा, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, द लाइक टर्म्स 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर. ओके, आइडेंटिकल लाइक टर्म्स हमने लिख लिए. नाउ स्टूडेंट्स, प्लस 4x प्लस 7x. ओके, प्लस 4x प्लस 7x. नाउ माइनस 3 प्लस 9, माइनस 3 प्लस 9. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, लेट अस सी. 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, यानी 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 आएगा. 9x स्क्वायर प्लस में ही आएगा, वो भी आंसर. ओके, प्लस 4x प्लस 7x, प्लस 4 प्लस 7 इज प्लस 11x, और माइनस 3 प्लस 9 तो प्लस 6 आएगा. तो ये तो रुपीस में आंसर आने वाला है, राइट? हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम? देयरफॉर रुपीस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 लेफ्ट विथ हिम, इज लेफ्ट विथ हिम, is left with him. So students, once again it was very easier question. So students, here we conclude exercise 6D, which was based on these word problems also. So see you in next class. Have a nice time. Bye bye students.